Hello children, welcome to your maths class with Poonam Bagga in a new segment today with a new chapter, chapter 14, factorization from class 8th maths. This is a very easy and interesting chapter. Once you understand all the concepts, you will really enjoy this chapter. So before we learn what is meant by factorization, we first need to understand what is meant by a factor. And we start with the very basic factor, factors of natural numbers. A factor of a number is an exact divisor of that number. Let us take one number, say 30. Now we know that 30 is equal to 3 into 10. And so if we now divide 30 by 3, or even if we divide 30 by 10, then the division will be complete. The division will be exact. The remainder will be 0, and we say that 3 is a factor of 30. Also 10 is a factor of 30. Also we see that if we take 30 as 15 into 2, then we see if we divide 30 by 15 or even if we divide by 2, then the remainder will be 0, the division will be exact, and we can say that 15 is a factor of 30 and also 2 is a factor of 30. Also we see that 30 comes in the table of 15, so 15 is a factor of 30. ऐसे ही 32 की टेबल में भी आता है 15 टाइम्स, 30 10 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है. तो ये सभी नंबर्स 30 के फैक्टर्स हैं. If we now want to write all the factors of 30, all the factors of 30 we want to write. So how to write them? We know that 1 is a factor of every number and every number is a factor of itself. So 1 will be a factor of 30 and also 30 is a factor of itself. Then we know that 2 15s is 30. So 2 and 15 are the factors of 30. We know 3 10s is 30. तो 3 और 10 ये और हो गए factors 30 के. Then we know that 30 does not come in the table of 4. तो 4 से related कोई factor हमें नहीं मिलेगा 30 का. Then we know 5 6 is 30 and then we know 6 5 is again 30. तो यहाँ पर अब repetition start हो रहा है. 5 6 5 तो यहीं रुक जाएंगे. And these are all the factors of number 30. Similarly, you can take any other number, you can try to write down the factors of that number also. Now out of these factors, we look at the prime factors. इनमें से prime factors कौन से हैं? आप देखेंगे कि 1 is neither a prime number nor a composite number. तो 1 नहीं है prime factor, 2 है, 3 है, 5 है, ये तीनों ही प्राइम नंबर्स हैं. रिमेनिंग नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स. ये प्राइम नंबर्स नहीं हैं. प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके दो ही फैक्टर हों, एक तो 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. तो यहाँ पर आप देखेंगे इनके तो बहुत सारे फैक्टर्स होंगे अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. तो ये तो सभी कंपोजिट नंबर्स हैं और प्राइम नंबर्स सिर्फ ये 3 हैं. सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 दे आर 2 3 एंड 5. Now we will write the prime factor form of a number. How to write it? We see a number written as a product of prime factors is said to be in the prime factor form. हम देखते हैं कि हम 30 को इस तरह से represent कर सकते हैं 2 into 3 into 5, जहाँ पर 2 3 और 5 ये तीनों ही प्राइम नंबर्स हैं. तो ऐसे में हमने 30 को सिर्फ प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया है. एंड देन वी से हियर दैट दिस इज द प्राइम फैक्टर फॉर्म ऑफ द नंबर 30. ये है प्राइम फैक्टर फॉर्म ऑफ नंबर 30. सिमिलरली इफ वी टेक एनी अदर नंबर, सपोज वी टेक द नंबर से 45, तो इसको भी हम प्राइम फैक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं. वी नो टू फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ नंबर. हम इजीली ये मेथड से प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना जानते हैं. बहुत पहले भी हम सीख चुके हैं छोटी क्लासेस में. वी नाउ टेक हियर 3 एंड 15 टाइम्स, अगेन 3 5 टाइम्स and 5 1s are 5. So 45 can be written as 3 into 3 into 5. ये हो गया प्राइम फैक्टर फॉर्म of this number 45. You can take one more number. Let us take the number say 70. तो इसको आप कैसे लिखेंगे? 70 के फैक्टर्स कीजिए. 2 35 times, then 5 7 times, 7 1 time. So this can be written as 2 into 5 into 7. तो ये फिर से क्या हो गया? प्राइम फैक्टर फॉर्म ऑफ नंबर 70.
ठीक है, क्लियर है, ये है केस नंबर्स का. नाउ वी मूव टूवर्ड्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड सी व्हाट इज मेंट बाय द फैक्टर्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. वी राइट हियर, व्हेन एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ two or more expressions, then each of these expressions is called a factor of the given expression. एक algebraic expression लेते हैं, चलिए चलते हैं हम 5xy इस फॉर्म पर. अब इसके फैक्टर्स क्या होंगे? जब हम इसका जो फॉर्म है इसको स्प्लिट कर दें, देखिए इस तरह से लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स इंटू वाई, इस तरह से स्प्लिट कर दिया. हमने क्या किया, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर दिया एज द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर एक्सप्रेशंस. ये देखिए 3 एक्सप्रेशंस के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया एक एक्सप्रेशन को. तब हम ये ईच एक्सप्रेशन को फैक्टर कहते हैं. 5 भी एक फैक्टर हो गया, x एक और फैक्टर हो गया और y एक और फैक्टर हो गया. किस एक्सप्रेशन का? 5xy का. तो हमने क्या किया, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को इस तरह से लिखा एज प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर एक्सप्रेशंस. देखिए 3 एक्सप्रेशंस के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख पा रहे हैं हम. देन ईच ऑफ दीज एक्सप्रेशंस, ये ईच एक्सप्रेशन 5 भी, x भी और y भी is called a factor of the given expression. इस एक्सप्रेशन का ये एक फैक्टर कहलाता है. बात समझ में आ रही है? एक केस और लेते हैं, चलिए. लेट अस टेक 12x²y. अब इसके फैक्टर्स देखिए, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 12, ये एक नंबर है, इसके प्राइम फैक्टर्स हम लिख सकते हैं. वी कैन टेक 12 एज 4 3 और 4 को भी हम स्प्लिट कर दें 2 2 तो प्राइम फैक्टर्स मिल जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 और फिर x², दिस मीन्स x इंटू एक्स एंड देन इंटू वाई. इस तरह से लिख सकते हैं. तो अब आप देखिए हमने एक एक्सप्रेशन को कितने सारे एक्सप्रेशंस के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया है. और अब यहाँ पर हर एक एक्सप्रेशन, ये 2, ये 2, ये 3, ये x, ये x और ये y, ये सभी फैक्टर्स है इस एक्सप्रेशन के. तो समझ में आ रहा है फैक्टर क्या हुआ? एक फॉर्म को, एक एक्सप्रेशन को स्प्लिट करना है उसके छोटे छोटे पार्ट्स में और हर एक छोटा पार्ट उस एक्सप्रेशन का फैक्टर कहलाएगा. बात समझ में आ रही है? एक बार फिर से देखिए. When an algebraic expression, this one, take the example in your mind, can be written as the product of two or more expressions. देखिए प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा रहा है, 2 or more expressions यहाँ पर है. कितने expressions हैं? 1 2 3 4 5 6 expressions हैं यहाँ पर. As a product of 2 or more expressions, then each of these expressions, each expression is called a factor of the given expression. तो ये सभी क्या हैं? फैक्टर्स हैं इस एक्सप्रेशन के. बात समझ में आ रही है? आप चाहते तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते थे 12x²y. You could have written it as 12x² into y. Let me write it once again with some proper space. इसको हम लिख सकते थे 12 into x² into y. इस तरह भी आप लिख सकते थे. Now what is the difference between this form and this form? ये भी फैक्टर्स हैं 12xy के और यहाँ भी तो हमने इसे प्रोडक्ट फॉर्म में ही लिखा है. इस एक्सप्रेशन को हमने यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशंस के प्रोडक्ट फॉर्म में ही तो लिखा है. कुछ एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करके, स्प्लिट करके यहाँ पे लिख दिया और फिर हमें ये एक्सप्रेशन मिल रहा है. तो क्या ये भी फैक्टर्स हैं इसके? बिल्कुल ये भी फैक्टर्स हैं. लेकिन दोनों केस में, इस केस में और इस केस में डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है? यहाँ पर आप देखेंगे ये जो फैक्टर्स हैं इनको आगे फैक्टराइज नहीं किया जा सकता, या कह लीजिए इनको आगे और स्प्लिट नहीं किया जा सकता क्योंकि ये पहले ही अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है. लेकिन इस केस में आप देख रहे हैं कि 12 को आगे स्प्लिट किया जा सकता है एज 2 इंटू 2 इंटू 3. x² को भी आगे स्प्लिट किया जा सकता है एज x इंटू एक्स और y तो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है. देख पा रहे हैं आप? हमने 12x²y सेम एक्सप्रेशन को यहाँ पर इस फॉर्म में लिख दिया है. इस तरह से फैक्टर्स लिखे हैं और ये भी फैक्टर्स हैं 12x²y के. लेकिन दोनों फॉर्म्स में डिफरेंस ये है कि यहाँ जो भी फैक्टर्स हैं वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है. आगे और इनके पार्ट्स नहीं हो सकते, आगे ये और फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो पा रहे हैं इस केस में. जबकि यहाँ जो फैक्टर्स हैं इनको आगे और स्प्लिट किया जा सकता है. 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3. x² को हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स. तो ये जो फॉर्म है ये
इरिड्यूसिबल नहीं है, इसको आगे और रिड्यूस किया जा सकता है, इस तरह से और छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, जबकि ये फॉर्म कहलाता है इरिड्यूसिबल फॉर्म। इरिड्यूसिबल फॉर्म जहाँ पर जो फैक्टर्स हैं उनको आगे और छोटे फैक्टर्स में ब्रेक नहीं किया जा सकता। वी टेक इट हियर, an algebraic expression written as the product of its factors which cannot further be expressed as a product of its factors is said to be in the irreducible form। अगर एक algebraic expression ऐसे एक्सप्रेस किया जाता है फैक्टर्स में जहाँ पर जो फैक्टर्स हैं उनको आगे और छोटे फैक्टर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सके, तब ऐसे फॉर्म को हम कहते हैं इरिड्यूसिबल फॉर्म। बात आ रही है समझ में? हियर वी राइट इरिड्यूसिबल फॉर्म ऑफ 5xy, इसका फॉर्म लिखते हैं हम इरिड्यूसिबल फॉर्म। दिस कैन बी रिटन एज 5 into x into y। दिस इज द इरिड्यूसिबल फॉर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अब आगे इसको स्प्लिट नहीं किया जा सकता, 5 विल बी एज इट इज, प्राइम नंबर है ऐसे ही रहेगा, x भी ऐसे ही रहेगा, y भी ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर आप ये मत सोचिएगा कि हम 5 को लिख सकते हैं 1 into 5। वी विल नॉट बी राइटिंग 1 एज द फैक्टर एवरी टाइम, अनलेस रिक्वायर्ड वी विल नॉट बी यूजिंग 1 एज द फैक्टर इन एनी केस। जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ अपने आप हम समझेंगे कहाँ ज़रूरत है, वहाँ पर हम 1 लेकर आएंगे, नहीं तो हम 1 को एज अ फैक्टर यहाँ पर नहीं मेंशन करेंगे। और अब हम देख सकते हैं कि ये है इरिड्यूसिबल फॉर्म। अगर आप यहीं पर इसे इस तरह से लिखते 5 into xy, तो ये इरिड्यूसिबल फॉर्म नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक्स वाई को आगे और स्प्लिट किया जा सकता था, इसको 5 into x into y ऐसे स्प्लिट किया जा सकता था एक्स वाई को, तो ये तो इरिड्यूसिबल फॉर्म है, लेकिन ये इरिड्यूसिबल फॉर्म नहीं है क्योंकि यहाँ पर x और y को अलग अलग नहीं किया गया है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ऐसे ही एक और केस लेकर चलते हैं, दिस वन, इसका इरिड्यूसिबल फॉर्म लिखते हैं। We have this expression 3x into x plus 2, तो यहाँ पर भी this can be written as 3 into x plus 2। Now what we see here, x plus 2, this is taken to be one single unit, इसे एक फैक्टर कंसिडर करेंगे। और ऐसे में अब हम देख रहे हैं कि इस एक्सप्रेशन को हमने 3 फैक्टर्स के फॉर्म में स्प्लिट कर दिया है, और अब ये तीनों ही फैक्टर्स अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में हैं, इन्हें आगे और फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। एंड सो दिस इज द इरिड्यूसिबल फॉर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन। नेक्स्ट वी स्टार्ट राइटिंग द इरिड्यूसिबल फॉर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन। यू कैन ऑल्सो ट्राई इन योर कॉपी अलॉन्ग विद मी। अब अगर हम इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिखें 10x into x plus 2 into y plus 3, तो क्या ये इरिड्यूसिबल फॉर्म है इस एक्सप्रेशन का? ऑब्वियसली नॉट। यहाँ पर हमने 10 को तो स्प्लिट किया ही नहीं, इसके सिंपल फैक्टर्स में कन्वर्ट किया ही नहीं, और ना ही हमने 10 को x से भी सेपरेट किया है, 10 into x नहीं किया है, और 10 के भी हमने प्राइम फैक्टर्स नहीं किए हैं। सो दिस इज नॉट द इरिड्यूसिबल फॉर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन। To write the irreducible form, we need to express 10 into its prime factors, 2 into 5, ये दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं, और ऐसे में ये प्राइम फैक्टर्स हो गए नंबर 10 के। देन into x plus 2 into y plus 3। अब हमने सभी फैक्टर्स अलग अलग करके लिख दिए हैं, और अब ये फैक्टर्स आगे और पार्ट्स में स्प्लिट नहीं हो सकते, इनके आगे और फैक्टर्स नहीं हो सकते, और फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में ये आगे एक्सप्रेस नहीं हो सकते। एंड सो हियर दिस इज द सिंपलेस्ट और वी से इरिड्यूसिबल फॉर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन, एंड दिस इज नॉट द इरिड्यूसिबल फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर हमने 10 को और फिर x को यहाँ पर स्प्लिट नहीं किया था। और जो नंबर्स के केस में प्राइम फैक्टर फॉर्म था, वही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के केस में इरिड्यूसिबल फॉर्म कहलाएगा। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि अगर हमारे पास कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो तो उसको जब हम इस तरह से स्प्लिट करते हैं, उसके छोटे पार्ट्स में इस तरह से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं उसके छोटे पार्ट्स, और वो आगे और स्प्लिट नहीं हो सकते, तो ये फॉर्म कहलाता है इरिड्यूसिबल फॉर्म ऑफ दैट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और अगर हम इसे इस तरह से स्प्लिट करें कि आगे और पॉसिबल हैं पार्ट्स, तो ऐसे में ये इरिड्यूसिबल फॉर्म तो नहीं कहलाएगा, इवन दो वी कैन कॉल देम एज फैक्टर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन। क्लियर है?
अब हम चलते हैं यहाँ से फैक्टराइजेशन की तरफ, जो है हमारा मेन टॉपिक. एंड व्हाट इट मीन्स, राइटिंग एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन. जब हम एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं तो उसे हम कहते हैं फैक्टराइजेशन. जब हमने 5xy को इस तरह से लिखा 5 इंटू एक्स इंटू वाई, तो एक्चुअली हमने 5xy का क्या कर दिया, फैक्टराइजेशन कर दिया. इसको छोटे पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया और वो पार्ट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. सो प्रोडक्ट कैसे मिलता है, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं. तो प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स, ये है प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स एंड दिस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन. जब हम एक एक्सप्रेशन को उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं तो उसे हम कहते हैं फैक्टराइजेशन. These factors may be numbers, algebraic variables और algebraic expressions. अभी ये केस देखिए, हमने यहाँ irreducible फॉर्म लिखा है इस एक्सप्रेशन का. यहाँ हम क्या देख रहे हैं, नंबर्स भी हैं, एल्जेब्रिक वेरिएबल्स भी हैं और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस भी हैं. 2 और 5 तो नंबर्स हो गए, x क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, और x + 2 और y + 3 ये क्या हो गए, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हो गए. तो इस तरह से हम फैक्टराइज करते हैं. तो ये फैक्टर्स नंबर्स हो सकते हैं, एल्जेब्रिक वेरिएबल्स हो सकते हैं या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस भी हो सकते हैं. हियर वी हैव दिस एग्जांपल. ये है फैक्टराइजेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन. इस एक्सप्रेशन के ये हमने फैक्टर्स लिखे हैं, या कह लीजिए इस एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज कर दिया है. जब हम एक एक्सप्रेशन को उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख रहे हैं, इसका मतलब हम इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर रहे हैं. बात समझ में आ रही है? Also here we see factorization is the reverse process of multiplication. Multiplication में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं. 2 into 5 बताइए कितना होता है, 10 होता है. ये तो हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन. और इसी का रिवर्स प्रोसेस होता है फैक्टराइजेशन. कि चलिए फैक्टराइज कीजिए 10 को फैक्टराइज कीजिए, यानी स्प्लिट कीजिए इसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में, और तब आप क्या लिखेंगे, 2 into 5. तो ये आपने फैक्टराइज कर दिया है किसको, 10 को. तो 10 को आप फैक्टराइज कर रहे हैं और फैक्टर्स क्या मिल रहे हैं, 2 और 5. 2 और 5 तो फैक्टर्स कहलाएंगे. और ये प्रोसेस जहां हम एक एक्सप्रेशन को स्प्लिट कर रहे हैं दो फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में, उस प्रोसेस को हम कह रहे हैं यहाँ पर फैक्टराइजेशन. आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर. अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ तो हमें फैक्टर्स अपने आप ही दिख रहे हैं. कुछ केसेस लेते हैं, 5xy ले लिया, मान लीजिए 12, और xy ले लिया, मान लीजिए वी टेक इट 3x into x + 2. यहाँ तो हमें फैक्टर्स ऑब्वियस दिख रहे हैं, लेकिन कुछ केसेस में हमें फैक्टर्स ऑब्वियसली दिखाई नहीं देते हैं. यहाँ तो हम फैक्टर्स देख रहे हैं, इसका 3 है, इसका x, फिर x + 2 ये फैक्टर्स हैं, ये 5 है, x है, y है. यहाँ भी हम देख रहे हैं x है, y है, और 12 के भी हम समझ सकते हैं कि 2 into 2 into 3 होगा. ये तो हम समझ पा रहे हैं. लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ हम देखते ही फैक्टर्स नहीं बता सकते, और तब हमें उन फैक्टर्स को फाइंड आउट करना होता है आफ्टर डूइंग सम मैनिपुलेशन. और वहाँ हमें ज़रूरत है मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन की. कुछ केस लीजिए, मान लीजिए आपको 2x + 4 दिया है, या दे दीजिए 3x + 5xy. तो अब ऐसे केसेस में हमें फैक्टर्स इजीली विजिबल नहीं है, तो हमें चाहिए मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन जिससे हम इन एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज कर सके. एंड इन दिस चैप्टर वी विल बी लर्निंग दीज 3 मेथड्स ऑफ फैक्टराइजिंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस. पहला मेथड आपका होगा मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स, सेकंड इज मेथड ऑफ रीग्रुपिंग टर्म्स, थर्ड इज यूजिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज. एंड इन टुडेज वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग दीज 2, ये वाला मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स एंड देन मेथड ऑफ रीग्रुपिंग टर्म्स. ये दोनों मेथड्स हम आज डिस्कस करने वाले हैं, और ये मेथड हम आने वाले वीडियोस में आगे डिस्कस करेंगे. नाउ फर्स्ट वी टेक फैक्टराइजेशन बाय मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स, एंड हियर वी टेक वन केस ऑल्सो. वी टेक वन एग्जाम्पल से 2x + 4. ये एग्जाम्पल साथ लेकर चलते हैं, और स्टेप बाय स्टेप, ये मेथड में 3 स्टेप्स हैं. स्टेप बाय स्टेप
ये पढ़ते जाएंगे, अकॉर्डिंगली इसको डील करते जाएंगे और देखते हैं कैसे फैक्टर्स हमें मिलते हैं। हियर वी राइट ईच टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन एज अ प्रोडक्ट ऑफ इररिड्यूसिबल फैक्टर्स। तो इररिड्यूसिबल फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे हम ईच टर्म को। ईच टर्म, यहाँ पर कितनी टर्म्स हैं? रिमेंबर द प्लसेस एंड माइनसेस दे एक्ट एज सेपरेटर्स। जहाँ पर प्लस और माइनस आ जाए वो सेपरेटर का काम करते हैं, स्पेस का काम करते हैं और वो बताते हैं हमें कि कितनी टर्म्स हैं। तो यहाँ पर प्लस के लेफ्ट में एक टर्म है और प्लस की राइट साइड में एक टर्म है, टोटल 2 टर्म्स हैं। और ईच टर्म को अब हम इररिड्यूसिबल फॉर्म में लिखेंगे, इररिड्यूसिबल फैक्टर्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो हम लिख सकते हैं 2x को तो 2 इंटू एक्स, प्लस 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2। ये क्लियर हुआ? 2x को हमने लिख दिया 2 इंटू एक्स, 4 को लिख दिया 2 इंटू 2। तो ईच टर्म को हमने इररिड्यूसिबल फैक्टर्स के फॉर्म में लिख दिया। इररिड्यूसिबल फैक्टर्स जिन्हें हम आगे और स्प्लिट नहीं कर सकते। 4 को हम स्प्लिट कर सकते थे, कर दिया, अब आगे 2 को तो स्प्लिट नहीं कर सकते। तो ये हो गया इररिड्यूसिबल फॉर्म। लुक फॉर एंड सेपरेट द कॉमन फैक्टर्स। अब इनमें आप कॉमन फैक्टर ढूंढिए। तो आप देखेंगे 2 इस केस में भी है और 2 इस केस में भी है। सो टेक इट आउट एज द कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर ढूंढ लिया दोनों केस में, उसको सेपरेट कर दीजिए। सेपरेट, उसको बाहर ले लीजिए और अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कंबाइन करेंगे इनको। देखिए कैसे, ये 2 जो कॉमन है इसको बाहर ले लीजिए। अब अंदर कौन बचेगा? ये तो 2 बाहर आ गया, अंदर आ जाएगा आपका x, फिर यहाँ से प्लस और ये 2 तो बाहर है आपका, यहाँ से आ गया 2। सो वी हैव द फैक्टर्स 2 इंटू एक्स प्लस 2। दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन 2x प्लस 4। समझ में आया? एक बार फिर से देखते हैं। थर्ड स्टेप पर फोकस करते हैं। कंबाइन द रिमेनिंग फैक्टर्स इन ईच टर्म इन अकॉर्डेंस विद द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने पढ़ा था, अगर हम 2 को x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करें तो पहले ये 2 इंटू एक्स होता है और फिर ये 2 इंटू 2 होता है एंड दिस इज 2x प्लस 4, यही होता है। अब हम इसका रिवर्स कर रहे हैं। हमने पढ़ा भी है कि फैक्टराइजेशन इज द रिवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ हम देखिए फैक्टराइज कर रहे हैं तो ये 2 इंटू एक्स प्लस 2 लिख दिया इस एक्सप्रेशन को। 2 को बाहर कॉमन ले लिया, ये 2 तो बाहर है, यहाँ से x अंदर आ गया, फिर प्लस है सेंटर में तो प्लस, इस प्लस को हमने यहाँ पर लिखा है दिस प्लस इज हियर एज प्लस, और फिर यहाँ से हमने ये 2 बाहर ले लिया, ये 2 बाहर ले लिया, यहाँ से x आ गया, यहाँ से 2 आ गया। तो अब आप देखिए ये आ गया 2 इंटू एक्स प्लस 2 और यहाँ से हम उस रिजल्ट पे भी पहुँच रहे हैं कि फैक्टराइजेशन इज द रिवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये अभी हमने नंबर्स के केस में डिस्कस किया था। फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में हम देख रहे हैं कि अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रिजल्ट आता है। अब हमें ये एक्सप्रेशन पहले दिया गया था और फिर उसको फैक्टराइज किया तो ये फैक्टर्स हमें मिल रहे हैं। ठीक है, अभी और एग्जाम्पल्स करेंगे, इट विल बी वेरी मच क्लियर। ध्यान रखिएगा, पहले हम यहाँ पर ईच टर्म को इररिड्यूसिबल फॉर्म में लिखेंगे, फिर कॉमन को देखेंगे और उसको सेपरेट कर देंगे और फिर इस तरह से कॉमन फैक्टर को बाहर लेके जो बचे हुए फैक्टर्स हैं उनको इनसाइड लिखेंगे ब्रैकेट के। Now we take a few cases here, few examples. We try these questions. Factorize 5xy plus 10x. 5xy plus 10x. यहाँ पर कितनी टर्म्स है पहले ये आइडेंटिफाई कीजिए। 2 टर्म्स आर देयर। दोनों टर्म्स को हम इररिड्यूसिबल फॉर्म में लिखेंगे। 5xy को लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स इंटू वाई और 10x को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू एक्स। ये क्लियर है? अब आप कॉमन फैक्टर सर्च कीजिए। देखिए 5 दोनों केसेस में है, x भी दोनों केसेस में है, y यहाँ है, इधर नहीं है, 2 इस केस में है, यहाँ लेफ्ट में नहीं है। तो 5 इंटू एक्स, ये कॉमन फैक्टर्स को आप बाहर ले लीजिए। अब रिमेनिंग फैक्टर्स को हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। फर्स्ट केस में 5 और x बाहर, y अंदर, फिर सेंटर में प्लस है तो प्लस, सेंटर में माइनस होता तो हम माइनस भी लिखते, और अब ये 5 और x तो बाहर है, यहाँ बचेगा 2। नाउ दिस विल बी 5x इंटू वाई प्लस 2। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन। 5x एंड y प्लस 2, 3 फैक्टर्स हो गए इस एक्सप्रेशन की। क्लियर है? यहाँ पर आप थोड़ा सा डायरेक्टली करना भी शुरू कीजिए। अब डायरेक्टली भी करना आना चाहिए। हमारे पास है 5xy
प्लस 10x। आप ये नंबर्स को देखिए 5 और 10 दोनों एक साथ किसकी टेबल में आते हैं? दोनों एक साथ 5 की टेबल में आते हैं और हम देख पा रहे हैं कि x भी दोनों टर्म्स में है, तो डायरेक्टली ही हम 5 और x को कॉमन ले लेते हैं। अब 5 बाहर है, x बाहर है, y अंदर आ गया, प्लस है सेंटर में तो प्लस। अब 5 की टेबल में 10 कितनी टाइम्स आता है? 2 टाइम्स, सो वी राइट हियर 2 और x तो पहले से ही बाहर है तो वो बाहर ही रहेगा। वी गेट इट 5x इंटू वाई प्लस 2। और अगर आप इलेबोरेटेड फॉर्म में समझना चाहें, हियर वी हैव द इलेबोरेशन, और आप चाहें तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं। वी टेक दिस वन नाउ 12x प्लस 36। इसको भी आप एक बार डायरेक्टली करने की कोशिश कीजिए। वैसे तो आप इसको रिड्यूसिबल फॉर्म में दोनों टर्म्स को स्प्लिट करके कर सकते हैं, बट लेट अस ट्राई टू डू दिस वन डायरेक्टली। देखिए 12 और 36 दोनों एक साथ किसकी टेबल में आते हैं? सोचिए, ऑब्वियस है 12 की टेबल में 12 भी आता है और 36 भी, तो 12 कॉमन है यहाँ पर, उसको बाहर ले लीजिए। अब x दोनों में नहीं है तो x बाहर नहीं आएगा, 12 बाहर है, x अंदर, प्लस 12 की टेबल में 36 कितनी टाइम्स आता है? 3 टाइम्स, सो वी राइट 12 3s are 36, सो 12 इंटू एक्स प्लस 3। ये हो गए इस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स, 12 इंटू एक्स प्लस 3। गेटिंग इट? This is the answer. Next here what we see, 2 more questions we have. Factorize 22y minus 33z। थोड़ा डायरेक्टली करने की कोशिश करते हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पर कॉमन फैक्टर, और यहाँ देखिए y और z ये तो कॉमन नहीं है। 22 और 33 एक साथ किसकी टेबल में आते हैं? एक्चुअली हम यहाँ पर दोनों नंबर्स का HCF देख रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर वो भी हाईएस्ट, और कॉमन फैक्टर दोनों के केस में यहाँ पर 22 और 33 दोनों एक साथ किसकी टेबल में आते हैं? 11 की टेबल में। सो हियर वी शुड टेक आउट द कॉमन फैक्टर 11, और फिर 11 की टेबल में 22 हाउ मेनी टाइम्स? 2 टाइम्स, सो 2y माइनस 11 3s are 33, सो 3z। These are the factors of this expression। अगर आप डायरेक्टली करेंगे तो बहुत जल्दी आंसर मिलेगा। अब इस केस में लेते हैं हम 14 एंड 35। पहले आप न्यूमेरिकल पार्ट्स को देखिए, नंबर्स को देखिए, और इन नंबर्स का HCF सोचिए, या ऐसा सोचिए सिंपल वर्ड्स में, वो टेबल जिसमें ये दोनों नंबर्स आए, ऐसा नंबर का टेबल जिसमें ये दोनों नंबर्स आए। हियर वी सी इट टू बी 7, तो 7 एक कॉमन फैक्टर हो गया। फिर आप वेरिएबल पार्ट्स को देखिए, क्या इनमें भी कुछ कॉमन है? जो भी कॉमन है उनको हम लेंगे बाहर, और फिर ब्रैकेट के अंदर हम रिमेनिंग टर्म्स को लिखेंगे। हियर वी राइट 7, इट इज़ कॉमन। 14 और 35 दोनों ही 7 की टेबल में आते हैं, 7 बाहर आ गया। फिर हम वेरिएबल पार्ट में देख रहे हैं पी क्यू दोनों ही टर्म्स में है, तो P एंड Q दे विल कम आउटसाइड, और फिर ब्रैकेट लगाएंगे। और अब क्या बच गया देखिए, 7 2s are 14, सो 2 विल बी हियर। PQ इज आउट, तो वो हम अंदर नहीं लिखेंगे, प्लस नाउ 7 5s are 35, PQ तो बाहर है वो नहीं लिखेंगे, R is here with 5 we will write R, and so we have 7 PQ into 2 plus 5 R. This is the factorization of this expression। और आप देखेंगे हर बार जब हम फैक्टराइज कर रहे हैं तो इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, क्या ये आप बता सकते हैं? Here we have only one term every time after factorization we have only one term। ये एक और एक मल्टीप्लाई करके यहाँ पर एक ही टर्म है, मल्टीप्लाई का साइन है बीच में, यहाँ ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, और मल्टीप्लाई जब होता है तब हम टर्म्स को अलग अलग काउंट नहीं करते हैं। एंड सो हियर वी विल बी टेकिंग द फुल एक्सप्रेशन एज वन टर्म। जब फैक्टराइज कर लिया उसके बाद ये जो प्रोडक्ट है फैक्टर्स का, प्रोडक्ट क्या होता है? अलग अलग नहीं कर रहा है टर्म्स को, उसे एक ही मानते हैं, और ये पूरी टर्म आपकी एक टर्म कहलाएगी। प्लस और माइनस जो है वो सेपरेटर्स का काम करते हैं, पर अभी तो ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है पूरा फैक्टर इस 7PQ से, तो ऐसे में ये एक यूनिट गिनेंगे आप, और ये एक फैक्टर कहलाएगा। और ऐसे में जब हम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पूरी टर्म आपकी एक टर्म कहलाएगी। ओके, next here we take the case of factorization by regrouping, and what we see, sometimes we don't find any common factor between all the terms given in an expression। अभी हम क्या कर रहे थे? कॉमन फैक्टर ढूंढ रहे थे और उसको बाहर ले रहे थे। कॉमन फैक्टर बाहर लिखा और फिर अंदर हमने जो
रिमेनिंग पार्ट्स हैं लिखें और हमें फैक्टर्स मिल गए। यही था आपका मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स। अब जब हम देखते हैं समटाइम्स ऑल द टर्म्स इन अ गिवन एक्सप्रेशन डू नॉट हैव अ कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर नहीं मिलता है हमें, तब हम क्या करें? बट द टर्म्स कैन बी ग्रुप्ड इन सच अ वे दैट ऑल द टर्म्स इन ईच ग्रुप हैव अ कॉमन फैक्टर। जब हमें सभी टर्म्स में कोई कॉमन फैक्टर ना मिले तब हम टर्म्स की ग्रुपिंग करते हैं, ग्रुप बनाते हैं टर्म्स के, और इस तरह से कि उस एक ग्रुप में कुछ कॉमन हमें मिल जाए और ऐसे ही दूसरे ग्रुप में भी हमें कुछ कॉमन मिल जाए। एंड देन व्हाट वी सी व्हेन वी डू दिस, देयर इमर्जेस अ कॉमन फैक्टर अक्रॉस ऑल द ग्रुप्स। जब हमने टर्म्स के ग्रुप बनाए और उनमें ग्रुप वाइज कॉमन फैक्टर बाहर लिया, उसके बाद भी हम देखते हैं कि एक और कॉमन फैक्टर निकल कर आता है सभी ग्रुप्स में, जिसे हम आगे चलकर फिर से कॉमन ले सकते हैं। अभी जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको बेटर क्लियर होगा। लीडिंग टू द रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन, दिस इज द मेथड ऑफ रीग्रुपिंग। सो व्हेन वी डू दिस देयर इमर्जेस अ कॉमन फैक्टर across all the groups leading to the required factorization of the expression. This is the method of regrouping. We take one example, we take this question, and here we have written the steps of method of regrouping terms. Step wise हम एक एक step पढ़ेंगे और इस question को साथ ही साथ solve करते जाएंगे. Here we have 2xy plus 3 plus 2y plus 3x. अब आप अभी यहाँ पर देखिए सभी टर्म्स में एक साथ कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ पर 2 है, x है, y है, पर इस टर्म में 3 में ना तो 2 है, ना x है, ना y है, कॉमन नहीं है ना, तो सभी टर्म्स में एक साथ कॉमन हमें नहीं मिलेगा। क्या करना है? अरेंज द टर्म्स ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन इन ग्रुप्स इन सच अ वे दैट ऑल द ग्रुप्स हैव अ कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पर टर्म्स को आगे पीछे करके ग्रुप्स बनाने हैं। 4 टर्म्स हैं, हम 2 टर्म्स के ग्रुप बनाएंगे इस तरह से कि एक ग्रुप में हमें कुछ कॉमन मिल जाए। तो अब आप देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ भी 2 है, फिर y भी है, इसके पास भी y है, तो क्यों ना हम इन दोनों को पास पास ले आएं। और ऐसे ही यहाँ हम देख रहे हैं 3 है और यहाँ भी 3 है, तो इनमें 3 कॉमन दिख रहा है, तो इन दोनों टर्म्स को आपस में ग्रुप कर लेते हैं और इन दोनों टर्म्स का आपस में ग्रुप बना देते हैं। सो हियर वी डू द रीग्रुपिंग, 2xy plus 2y plus here we can write 3x plus 3। हमने क्या किया? ये दोनों टर्म्स का एक ग्रुप बना दिया और इन दोनों टर्म्स का एक ग्रुप बना दिया इस तरह से कि हमें इनमें कुछ ना कुछ कॉमन मिल जाए। अब इन्हीं दो में कॉमन लेते हैं। देखिए आप 2y कॉमन है, इसको बाहर ले लिया, अप्लाई द ब्रैकेट्स। अब 2y तो बाहर है, अंदर कौन आएगा? x, फिर प्लस है बीच में, और अब ये 2y पूरा ही बाहर है, तो यहाँ कौन बैठेगा? यहाँ आप लिख सकते हैं इंटू 1। 2y को आप समझ सकते हैं 2y इंटू 1, और ऐसे में 2y पूरा ही बाहर है तो अंदर यहाँ पर आएगा इसकी जगह 1। 2y बाहर और 1 यहाँ आएगा, तो यहाँ हमें 1 की ज़रूरत पड़ी और हमने लिख दिया 2y इंटू 1। देन हियर वी हैव प्लस। अब इन दोनों में 3 कॉमन है, इसको बाहर ले लीजिए, एंड देन व्हाट वी हैव इनसाइड, 3 तो बाहर है, x अंदर, प्लस अब यहाँ 3 तो बाहर चला गया, अंदर कौन बैठेगा? इसको आप अज्यूम कर सकते हैं 3 इंटू 1, 3 बाहर है, अंदर आ जाएगा 1। गेटिंग इट? और अब आप देखिए जब हमने ग्रुपिंग की और कॉमन फैक्टर्स बाहर लिए तो फिर से एक कॉमन फैक्टर हमें उभरता दिख रहा है, x प्लस 1, दोनों ही ग्रुप्स में x प्लस 1 फिर से कॉमन आ गया है। और अब हम इस कॉमन फैक्टर को भी बाहर ले लेते हैं एंड वी विल राइट हियर x प्लस 1 को बाहर ले लिया और अब रिमेनिंग अंदर ले लेंगे। यहाँ से x प्लस 1 पूरा तो बाहर आ गया, यहाँ से बचेगा 2y प्लस ये x प्लस 1 बाहर और यहाँ से आ गया 3, सो 2y प्लस 3। इन दिस वे वी हैव डन द ग्रुपिंग ऑफ द टर्म्स। यहाँ है हमारे पास x प्लस 1। तो समझिए आप क्या किया? अरेंज द टर्म्स ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन इन ग्रुप्स। हमने टर्म्स को ग्रुप्स में अरेंज किया इस तरह से कि ऑल द ग्रुप्स हैव अ कॉमन फैक्टर। यहाँ पर 2y कॉमन था, यहाँ पर 3 कॉमन था। फैक्टराइज ईच ग्रुप, ईच ग्रुप को हमने फैक्टराइज किया, ये इसका फैक्टराइजेशन, ये इसका फैक्टराइजेशन। टेक आउट द फैक्टर विच इज कॉमन, x प्लस 1 कॉमन था, उसको बाहर ले लिया,
टेक आउट द फैक्टर विच इज़ कॉमन टू ऑल सच ग्रुप्स, उसको बाहर ले लिया और रिमेनिंग टर्म्स लिखने से हमें ये दोनों फैक्टर्स मिल गए. दिस इज़ द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन. ठीक है, इज इट ओके? आप चाहते तो यहाँ पर ग्रुपिंग इस तरह से भी कर सकते थे, x और x, ये देख रहे हैं आप, इन दोनों टर्म्स की ग्रुपिंग भी कर सकते थे, 2xy और 3x, इनकी ग्रुपिंग कर सकते थे और ऐसे ही यहाँ पर फिर इनकी ग्रुपिंग कर सकते थे. एक बार इसको भी करके चलते हैं. चलिए नेक्स्ट पेज पे लेते हैं कि क्या ऐसे भी ये क्वेश्चन हो सकता है या नहीं. वी हैव 2xy प्लस 3 प्लस हियर वी हैव 2y प्लस 3x. अब अगर हम 2xy प्लस 3x ये एक साथ ले लें और 3 प्लस 2y अलग ग्रुप बना लें, इसका और इसका एक ग्रुप बना लिया, इन दोनों का अलग ग्रुप बना लिया. यहाँ पर हम देख रहे हैं x कॉमन है, 2y अंदर आ जाएगा, x बाहर, प्लस x बाहर है, 3 अंदर, प्लस हियर वी हैव 3 प्लस 2y. अब 3 प्लस 2y देखिए वही दिख रहा है हमें आता हुआ, तो यहाँ आप समझ सकते हैं 1 इंटू 3 प्लस 2y, या एज इट इज़ भी लिखेंगे. अगर आप 3 प्लस 2y, मान लीजिए अभी आप 1 इंटू ना लिखें, 3 प्लस 2y ऐसे ही लिख लीजिए. तो अब हमारे पास 3 प्लस 2y यहाँ भी है, 3 प्लस 2y यहाँ भी है, कॉमन आ गया, इसको बाहर ले लीजिए 3 प्लस 2y. और अब अंदर क्या बचा, ये पूरा बाहर है, x अंदर, और यहाँ इसके साथ कुछ नहीं है, दिस मीन्स मल्टीप्लाइड बाय 1, सो प्लस 1. We get these two factors and these are the same ones here, x plus 1 2y plus 3, x plus 1 2y plus 3, 3 plus 2y 2y plus 3 both mean the same. तो इस तरह से भी आप रीग्रुपिंग कर सकते हैं. तो एक ही तरीका नहीं है जिससे कि हम किसी भी एक्सप्रेशन को रीग्रुप कर सकते हैं. There may be more than one way to regroup the terms and there is no particular definite method of regrouping. And what we see here in factorization by regrouping, we should remember that any regrouping or rearrangement of the terms in the given expression may not lead to factorization. हर बार जब हम regrouping करें तो ज़रूरी नहीं है कि हमें फैक्टराइजेशन मिल जाए. जो टर्म्स हैं, जो एक्सप्रेशन है, उसके 2 फैक्टर्स या 3 फैक्टर्स जो भी हैं वो मिल जाए रीग्रुपिंग से, हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं है. What we see, we must observe the expression and come out with the desired regrouping by trial and error. आप एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व कीजिए और फिर उसमें ऐसी टर्म्स देखिए जिनमें कुछ कुछ कॉमन हो, उन टर्म्स की ग्रुपिंग कीजिए. और हर बार अगर ऐसा हो कि नहीं हो पा रहा है आपका फैक्टराइजेशन, तो दूसरा केस लीजिए, दूसरी ग्रुपिंग कीजिए. ट्रायल एंड एरर मेथड, एवरी टाइम यू हैव टू ट्राई. एरर आ रहा है तो दोबारा दूसरी ग्रुपिंग कीजिए, फिर से ट्राई कीजिए, फिर से एरर आ रहा है तो आप तीसरी ग्रुपिंग कीजिए, फिर से ट्राई कीजिए, यू विल गेट द आंसर. सो एवरी टाइम देयर इज नो डेफिनेट मेथड ऑफ ग्रुपिंग. एवरी टाइम यू विल हैव टू सी द कॉमन फैक्टर्स एंड देन यू विल हैव टू ग्रुप. एक ही क्वेश्चन को आप अलग अलग तरह से भी ग्रुपिंग कर सकते हैं. ये केस है, यहाँ पर हमने इन दोनों टर्म्स की ग्रुपिंग की थी और यहाँ हमने इन टर्म्स की. सो यू कैन डू one single question by taking different groups also. With this now we are ready to do examples from your book. Here we have example 1. Factorize 12a square b plus 15ab square. ये है आपकी फर्स्ट टर्म. पहले इसे इरेड्यूसिबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, डायरेक्टली बाद में सीखेंगे या बाद में करेंगे, पहले इसको इलेबोरेट करके करते हैं. 12 के फैक्टर्स वी नो. 12 इट कैन बी रिटन एज 2 6 12, 2 3 3 1. अगर आप डायरेक्टली नहीं लिख पा रहे हैं 12 के फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स, तो आप इस तरह से इसको स्प्लिट कर सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, देन a इंटू a इंटू b. ये हो गया irreducible form of 12a square b. Then we write the irreducible form of 15ab square. 15 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 5, a और b square means b into b. Square हो रहा है, this means we will be multiplying the same number by itself 2 times. a square means a into a, b square means b into b. I hope it's clear. अब यहाँ पर हम फाइंड आउट कर रहे हैं कॉमन फैक्टर. पहले कॉमन फैक्टर बताइए. देखिए 3 कॉमन है, फिर a कॉमन है, ठीक है, b is common, other factors are not common. So we see the common factors here are 3
A and B, ये तीनों कॉमन फैक्टर्स हैं. सो हियर वी हैव 12a स्क्वायर b प्लस 15ab स्क्वायर. इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू ए इंटू बी. इसको तो आप बाहर ले लीजिए कॉमन फैक्टर को, और फिर रिमेनिंग फैक्टर्स देखिए 3a और b बाहर चले गए, यहाँ पर बचेगा 2 इंटू a. ये तीनों फैक्टर्स, ये तो कॉमन फैक्टर्स बाहर आ गए, 2 इंटू a. फिर आपका बीच में है प्लस, सो हियर वी विल हैव प्लस एंड देन वी हैव 5 इंटू b. जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो बाहर है, 5 इंटू b. दिस विल गिव यू 3ab. अब इनको एक साथ लिख लीजिए, 2 2 ज़ा 4a प्लस 5b. दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन 12a स्क्वायर b प्लस 15ab स्क्वायर. अब इसको एक बार डायरेक्टली भी करना सीखते हैं, क्योंकि आगे चलकर हमें डायरेक्टली करना आना चाहिए. द क्वेश्चन इज 12a स्क्वायर b प्लस 15ab स्क्वायर. 12 और 15 एक साथ किसकी टेबल में आते हैं? 3 की टेबल में, तो 3 कॉमन है. फिर आप देख रहे हैं a दोनों ही केस में स्मॉलेस्ट पावर a की क्या है? 1 है यहाँ पर, तो a रेज टू पावर 1 या सिंपली a हम कॉमन लेंगे. b की भी स्मॉलेस्ट पावर 1 है, तो b दोनों में कॉमन है, इसको कॉमन लेंगे बाहर. और फिर अंदर कौन बचेगा? a देखिए 2 टाइम्स है, एक a बाहर एक a अंदर, b बाहर है, ओके. 3 4 ज़ा 12, सो 4a प्लस यहाँ पर देखिए a तो बाहर है तो अंदर नहीं आएगा, b स्क्वायर था तो एक b बाहर एक b अंदर. और अब 3 की टेबल में 15 कितनी टाइम्स? 5 टाइम्स, सो 3ab इंटू 4a प्लस 5b. देखिए वही आंसर आ रहा है. ये तो था पूरा एलेबोरेटेड फॉर्म और ये हमने डायरेक्टली किया है. यू कैन डू डायरेक्टली ऑल्सो और यू कैन take these steps to write the answer. It's up to you now. We take the next one here, example 2. Factorize this one. अब each term को individually लेते हैं और irreducible form में लिखते हैं. 10x square, 10 को हम लिख सकते हैं 2 into 5 और फिर x square will be x into x. Then we have 18x cube. 18, it is 2 9s and 9 is 3 into 3. देन x इज 3 टाइम्स, तो 3 बार हम x को मल्टीप्लाई करेंगे. 14x रेज टू पावर 4, 14 इज 2 7s, देन x विल बी मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 4 टाइम्स. नाउ वी नीड टू फाइंड द कॉमन फैक्टर्स. 2 कॉमन है देखिए, इसके बाद 5 नहीं है, 3 नहीं है, x ओके, x ओके. तो वी हैव द कॉमन फैक्टर्स आर, we write the common factors here. These are 2x and x. So we have 10x square minus 18x cube plus 14x raised to power 4. This can be written as 2 into 5 into x minus we have 2 into 3 into 3 into x plus we have 2 7s and 4 times x. Now we take the common outside. It is 2 into x. ये तो बाहर ले लिया. अब अंदर कौन बचेगा? देखिए 2x और x तो बाहर, 5 बचेगा, माइनस 2 बाहर है, x बाहर है, x बाहर है, 3 3s are 9 और फिर यहाँ से x. और वी कैन टेक इट इन द नेक्स्ट स्टेप 9. वी राइट इट 3 into 3 into x जस्ट फॉर क्लियर अंडरस्टैंडिंग. अब यहाँ पर 2 बाहर है, x बाहर है, x बाहर है, 7 बचा, x into x. रिमेनिंग हमने अंदर लिख दिए हैं. विद दिस वी कैन राइट दिस एज 2x square. दिस विल बी 5 minus 9x plus 7x square. स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें इन डिक्रीजिंग पावर ऑफ x, वी कैन टेक इट एज 7x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5. यहाँ पर 5 के पहले कोई सिंबल नहीं है, दिस मीन्स इट इज़ पॉजिटिव एंड नीड नॉट राइट हियर इन द बिगिनिंग, बट येस देयर वी नीड टू राइट. यहाँ हमें प्लस लिखना होगा. दिस इज़ द फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन. और ये सिंगल टर्म है, याद रखिएगा, बार बार कह रही हूँ मैं. नेक्स्ट यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस डायरेक्टली. आपको दोनों मेथड्स नहीं करने हैं इस तरह से, एलैबोरेटेड फॉर्म भी और डायरेक्टली भी. डायरेक्टली तो बस समझने के लिए बता रही हूँ आपको. इन केस यू कैन डू इट डायरेक्टली, इट्स बेटर. आप यहाँ पर समझ सकते हैं तीनों ही टर्म्स में
जो नंबर्स हैं एक साथ किसकी टेबल में आ रहे हैं, 10, 18, 14, आप देखेंगे 2 की टेबल में आते हैं, तो 2 कॉमन हो गया। फिर x की मिनिमम पावर देखिए, x तीनों में है, उसमें भी स्मॉलेस्ट पावर स्क्वायर, ये कॉमन आ गया। अब 2 5 ज़ा, एक्स स्क्वायर बाहर है, माइनस 2 9 ज़ा, पावर 3 है, 2 बाहर हो गए, 1 अंदर। x कितनी बार है, 3 बार है, उसमें से 2 बार तो बाहर और 1 बार अंदर, प्लस 2 7 ज़ा 14, तो 7 आएगा। यहाँ पर पावर है 4, 4 में से 2 टाइम्स बाहर और 2 टाइम्स अंदर, एंड वी गेट द आंसर डायरेक्टली, द सेम आंसर एज वी गॉट हियर। तो सेम आंसर हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। यू कैन ट्राई डूइंग डायरेक्टली। वी टेक वन मोर हियर, फैक्टराइज दिस वन। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं 4 टर्म्स हैं और कुछ भी कॉमन एक साथ नहीं है चारों टर्म्स में, तो यहाँ हमें करनी होगी रीग्रुपिंग। वी टेक हियर 6xy देखिए, और यहाँ से हम देख सकते हैं y, ये भी दिख रहा है हमें, इन दोनों में y कॉमन है और ये दोनों ही 2 की टेबल में है, तो इन्हीं दोनों को एक ग्रुप में ले लेते हैं और रिमेनिंग टर्म्स को हम सेकेंड ग्रुप में ले लेते हैं। वी कैन टेक दिस वन एज 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x। 2 ग्रुप हो गए, फर्स्ट ग्रुप सेकेंड ग्रुप। इनमें कॉमन जो भी है वो बाहर लेते हैं। देखिए 6 और 4 दोनों 2 की टेबल में है, 2 कॉमन है, y भी दोनों में है कॉमन, 2 3 ज़ा 6, सो 3 विल बी हियर, y तो बाहर है, x अंदर, माइनस 2 2 ज़ा 4, y बाहर है तो सिर्फ 2 ही रहेगा यहाँ पर, प्लस अब 6 और 9 दोनों 3 की टेबल में है, 3 को बाहर लीजिए, 3 2 ज़ा 6 माइनस 3 3 ज़ा 9, और x भी आएगा। यहाँ पर x बाहर नहीं है तो अंदर आएगा ही। अब यहाँ पर हमें देखना चाहिए ये दोनों कॉमन होने चाहिए, सेम होने चाहिए, पर हम देख रहे हैं ये तो 3x माइनस 2 है, ये है 2 माइनस 3x। यहाँ से हम फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ हमें थोड़ी सी ग्रुपिंग चेंज करनी होगी। हम क्या कर सकते हैं, अब की बार इसको लिख सकते हैं 6xy माइनस 4y माइनस 9x प्लस 6। ऐसा लिखने से क्या होगा, हम क्या चाह रहे हैं, 3x पहले आए और 2 बाद में आए, जैसे यहाँ है 3x पहले आए और 2 बाद में आए, तो हम इन्हीं टर्म्स को आगे पीछे कर देते हैं, तो उससे 3x पहले आ जाएगा, 2 बाद में आ जाएगा। तो ग्रुपिंग हमने यहाँ पर सेट जो की थी वो अब चेंज कर दी। अब फिर से ये ग्रुप फर्स्ट हो गया, ये ग्रुप सेकंड, इसमें आप कॉमन लीजिए, जैसे हम कर रहे थे वैसे ही करते हैं। 2 कॉमन आएगा, y कॉमन आएगा 3 टाइम्स एंड x माइनस 2 ये कॉमन आ गया। अब यहाँ पर माइनस है, सो माइनस, ये दोनों ही 9 और 6 3 की टेबल में आते हैं, 3 कॉमन, 3 3 ज़ा 9 x, और अब क्योंकि यहाँ माइनस है ये प्लस कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, 3 2 ज़ा 6। ये समझते हैं हम यहाँ पर कैसे हो रहा है। ये जो प्लस है, इस प्लस को आप समझिए माइनस इंटू माइनस, माइनस माइनस मिलके ही तो प्लस बनता है। तो अब एक माइनस तो हमने बाहर ले लिया, ये कॉमन, और दूसरा माइनस यहाँ आ गया, समझ रहे हैं आप, एक माइनस तो यहाँ आ गया, दूसरा माइनस यहाँ आ गया। इस प्लस को हमने अगर ऐसे अज्यूम किया माइनस इंटू माइनस। कुल मिला के सीधी बात ये है कि अगर बाहर का सिंबल माइनस हो तो ये वाला साइन हमेशा चेंज होता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। आगे चलकर हम और क्वेश्चंस करेंगे, तब आपको और भी ये अप्लाई करेंगे, यूज़ करेंगे तो क्लियर होगा। 2y इंटू 3x माइनस 2, और यहाँ पर माइनस 3 इंटू 3x माइनस 2। अब देखिए ये कॉमन आ गया हमारे पास, सेम फैक्टर मिल रहा है हमें, इसे कॉमन ले लीजिए, 3x माइनस 2, और यहाँ से क्या आ जाएगा, 3x माइनस 2 तो पूरा बाहर आ गया, इधर से 2y माइनस 3x माइनस 2 ये पूरा बाहर आ गया, यहाँ से 3, एंड वी हैव दीज 2 फैक्टर्स, दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, यहाँ पर भी हम इसको रिजल्ट को ला सकते थे, वो भी एक बार समझना ज़रूरी है। यहाँ अगर हम इस तरह से चलते तो कैसे हम सॉल्व करें, दिस कैन बी रिटन एज 2y इंटू 3x माइनस 2। अब हम चाहते हैं ये 3x माइनस 2 हो जाए, 2 माइनस 3x ना रहे, ऐसे में हम इसका माइनस बाहर खींच लेते हैं कॉमन, और ये हो जाएगा माइनस 3, और यहाँ ये जो 2 है इसको आप ऐसे समझिए प्लस 2 है, ये इसको आप समझिए कि ये है माइनस ऑफ माइनस 2, ऐसा समझिए फॉर द टाइम बिंग, माइनस ऑफ माइनस 2। तो अब जब हमने माइनस को इसका बाहर खींचा तो ये तो हो गया प्लस 3x, क्योंकि इसका माइनस बाहर चला गया, और यहाँ 2 माइनस थे, एक माइनस बाहर एक माइनस अंदर, 3x माइनस 2।
समझने के लिए यहाँ इस तरह से मैनिपुलेट किया, अदरवाइज दिस विल बी 2 itself। आप वीडियो रिवाइंड करके एक बार फिर समझ सकते हैं। जब भी हम इंटरचेंज करेंगे दो टर्म्स की पोजीशन को इस तरह से, तो बाहर जो सिंबल है वो चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, बाहर का सिंबल चेंज हो जाएगा और अंदर की टर्म्स को हम इंटरचेंज कर सकते हैं टू सम अप। और अब हमारे पास 3x - 2 है यहाँ पर, सेम फैक्टर, इसको कॉमन ले लेते हैं बाहर, जो कॉमन है दोनों ही टर्म्स में, और यहाँ से आएगा 2y, यहाँ से आएगा -3, एंड वी हैव द सेम फैक्टर्स। ओके, with this we have learnt what is factorization, how to do factorization by the method of common factors and by regrouping terms. Go through the video again if you haven't got it yet, otherwise I hope you have got it, and now we are ready to do exercise 14.1 in our next video. Practice these questions, go through it once again. Bye for now.